everyone and welcome back to the French language series. Today we are going to study about possessive adjectives. It's one of the most basic topics again and it lays the foundation for possessive pronouns, which is a very important topic in grade 10. Let's study possessive adjectives today. Quick question. What is a possessive adjective? If you all remember, when we were in younger grades, we used to study possessive adjectives and nouns, right? So what is possessive? Possessive basically means that denotes ownership, जो belongingness के बारे में बताता है, जो possession के बारे में बताता है, like we are possessive towards something or someone. So that is possessive adjectives. Okay, so possessive adjective comes before a noun. It sits before a noun or a pronoun to show who or what owns it. Again, ownership या belongingness की बात करते हैं. Okay, now French possessive adjectives are used in front of nouns again to indicate whom or to what those nouns belong to. मतलब वो noun किसको belong करता है, वो noun के लिए कौन possessive है, क्या ownership है, वो denote करते हैं possessive adjectives, French में भी और English में भी. ठीक है. Now these are considerably more complicated than English possessive adjectives. क्यों? क्योंकि फ्रेंच में क्या होता है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ जेंडर एंड नंबर पे डिपेंड करता है नाउन भी. जैसे पेंसिल या पेन, फॉर एग्जांपल स्टीलो है, तो स्टीलो को हम मैस्कुलिन सिंगुलर मानते हैं, तो उसके लिए हम अलग पोजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द जेंडर एंड नंबर ऑफ द पोजेस्ड नाउन. फॉर एग्जांपल वी जस्ट सेड स्टीलो. स्टीलो होता है मैस्कुलिन सिंगुलर, सो इसके लिए हम मैस्कुलिन सिंगुलर पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे. सिमिलरली अगर मैं गॉम बोलूंगी इरेजर, तो उसके लिए हम फेमिनिन सिंगुलर नाउन यूज करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल nous écoutons ma musique. दिस मीन्स वी आर लिसनिंग टू माई म्यूजिक, लेकिन यहाँ पे हमने माँ यूज किया. Similarly, où est mon frère? Now, mon again means my. And j'ai perdu mes clés. I lost my keys. Again, my के लिए हमने mes use किया. So now, if you can notice, children, my के लिए हमने तीन forms use किए हैं. mon, ma and me. तो फ्रेंच में एक ही possessive adjective जो इंग्लिश का है, उसके 3 forms हैं. और वो 3 फॉर्म्स किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड नंबर. 3 फॉर्म्स मिलेंगे हमें हर पोजेसिव एडजेक्टिव के लिए फ्रेंच में ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड नंबर, क्योंकि मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए अलग यूज करेंगे, फेमिनिन के लिए अलग और प्लूरल के लिए अलग. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेंच पोजेसिव एडजेक्टिव्स. ठीक है. These are used in place of an article and not with an article. Article की जगह यूज होते हैं. जैसे मैंने बोला ल स्टीलो, द पेन है, मैंने बोला ल स्टीलो, तो अब इस ल की जगह ही मैं मो या मा स्टीलो लिखूंगी. ओके, आई विल नॉट राइट मो ला स्टीलो. Right, it is coming in place of an article. Mo, ma, me is going to come in place of an article and not with an article. Okay, now these are placed directly in front of a noun or an adjective plus noun. Of course, noun के लिए possessiveness दिखानी है, तो noun के पहले place करेंगे इसको. ठीक है. Now this must agree with the possessed noun in number and gender. क्योंकि नंबर एंड जेंडर से अग्री करना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंग्लिश के एक पोजेसिव एडजेक्टिव के लिए हमारे पास 3 एडजेक्टिव्स हैं फ्रेंच में. अभी हमने देखा माय है इंग्लिश का, एक ही यूज करते हैं ना, चाहे मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो या प्लूरल हो, हम माय ही बोलते हैं. लेकिन जब हम फ्रेंच में पढ़ते हैं तो हम मैस्कुलिन के लिए अलग यूज करते हैं, फेमिनिन के लिए अलग करते हैं और प्लूरल के लिए अलग करते हैं. ओके, नाउ पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन will be replaced by a possessive pronoun. जब हम possessive pronoun पढ़ेंगे, we'll study this at that time, that a possessive adjective, for example, mon ami will be replaced by possessive pronoun. Okay, is that clear? Now let's move on. This is the table for possessive adjectives. Now इसकी एक trick है.
इसको याद कैसे करेंगे? हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन पता है, ये सबसे ज्यादा इजी कॉलम है, जॉत्यू इलेल नूवू इलेल, ये हमें पता है, राइट? अब हमें याद क्या करना है? पहला कॉलम होगा मैस्कुलिन सिंगुलर, सेकंड होगा फेमिनिन सिंगुलर और थर्ड होगा प्लूरल। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर होता है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों इसी में आते हैं, ठीक है? अब हम कैसे याद करेंगे? म, मा, मे, ज के साथ म, मा, मे, त्यू के साथ तो, ता, ते, इल एल के साथ सौ, सा, से, नोत्र, नोत्र, नो, नू के साथ, वोत्र, वोत्र, वो के साथ, इल एल के साथ लर, लर एंड लर। प्रोनाउंसिएशन सेम है, सिर्फ स्पेलिंग डिफरेंट है। इसका मतलब होता है माय, योर, हिज या हर, आर, योर एंड देयर, ठीक है? सो हाउ आर वी सपोज टू लर्न दिस? हमें ये पता है सबसे पहला सब्जेक्ट प्रोनाउन आता है ज, फिर त्यू, फिर इलेल, फिर नू, फिर वो और दोबारा इलेल, ठीक है? तो हमें ये तो याद है। नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू लर्न द थ्री कॉलम्स, ओके? इट इज म, मा, मे, तो, ता, ते, सौ, सा, से, नोत्र, नोत्र, नो, वोत्र, वोत्र, वो, लर, लर, लर। ये टेबल अगर हमने याद कर ली, वी विल बी सॉर्टेड फॉर पोजेसिव एडजेक्टिव्स, हेंस हम पोजेसिव प्रोनाउन के लिए भी सॉर्टेड रहेंगे, ओके? दोबारा करते हैं, जॉत्यू इलल नूवू इलल सबको याद है, राइट? अब हम करते हैं म, मा, मे फॉर ज, तो, ता, ते फॉर त्यू, सौ, सा, से फॉर इलल, ओके? नोत्र, नोत्र, नो फॉर नू, वोत्र, वोत्र, वो फॉर वू, एंड लर, 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 ओनली एस इज एडेड हियर, ये हम इलेल के लिए करते हैं, ठीक है? नाउ important points for possessive adjectives that these should agree with the object। हम बार बार इस पॉइंट पे स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि फ्रेंच में तीन अलग अलग प्रोनाउंस, तीन अलग अलग एडजेक्टिव्स प्रेजेंट है बच्चों। एक ही एडजेक्टिव जो इंग्लिश में यूज होता है माय, उसके लिए फ्रेंच में तीन फॉर्म्स अवेलेबल है बिकॉज ऑफ जेंडर एंड नंबर, ठीक है? तो इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करा जा रहा है कि हमें जेंडर और नंबर के साथ अग्री करवाना है, ओके? इन सिंपल वर्ड्स दे शुड अग्री इन जेंडर एंड नंबर ऑफ द नाउन, ठीक है? मो, तो एंड सो, these three, mo, to and so are used with feminine nouns beginning with a vowel, जैसे आमी, फीमेल फ्रेंड, AMIE, आमी, ये तो फीमेल फेमिनिन सिंगुलर हुआ क्योंकि फीमेल फ्रेंड की बात करें, लेकिन क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट होता है, मैं यहाँ पे मो प्लेस करूंगी, जबकि मो तो मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए करते हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है और ये एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पर जो नाउन्स वॉवल्स के साथ स्टार्ट होते हैं वहां पे हम मैस्कुलिन सिंगुलर पुट करेंगे, मोनामी, तोनामी, सोनामी, ठीक है? समझ में आया? सिमिलरली एकोल की अगर मैं बात करूं, एकोल का मतलब होता है स्कूल, ये भी तो फेमिनिन सिंगुलर है और ई से स्टार्ट हो रहा है, ई तो वॉवल होता है, तो अब मैं इसके लिए मो, तो या सो यूज करूंगी। मैं माँ एकोल नहीं बोलूंगी, क्यों? क्योंकि ये मैल प्रोनाउंसिएशन है, ये दोनों वॉवल साथ में प्रोनाउंस हो ही नहीं सकते, माँ एकोल मैं बोल ही नहीं सकती, राइट? इसीलिए मैं मॉन एकोल बोलूंगी। मैं माँ आमी नहीं बोल सकती, एम डबल ए कैन नॉट कम टुगेदर, तो मैं माँ आमी नहीं बोल सकती, दैट्स व्हाई आई विल से मॉन आमी। इज दैट क्लियर? वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? लेट्स रिवाइज क्विकली, ए, ई, आई, ओ, यू एंड एच, ओके? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? एग्जाम्पल्स, mon oncle, MON, oncle, ई से एंड हो रहा है, फेमिनिन सिंगुलर है, लेकिन वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए मो लगाया है, ओके? ता, तौत, अब ये तो फेमिनिन सिंगुलर है लेकिन ये वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसीलिए ता लगाया है। सेज आमी, योर फ्रेंड्स, अब ये वॉवल से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो हम ऐसी ऐसी लगाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? ओके,
अब अगर मैं दोबारा से टेबल पर जाऊं और हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखें, तो अगर मुझे कारताब्ल की बात करनी है, इफ आई वॉन्ट टू से कारताब्ल, तो मैं उसके साथ क्या यूज करूंगी, माँ, राइट। अकॉर्डिंग टू द टेबल तो मुझे माँ लगा देना चाहिए, बट दिस इज एन एक्सेप्शन, तो यहाँ पे मौ कारताब्ल होगा. Is that clear? There are a lot of exceptions like livre also. If you know about the noun livre, livre का मतलब होता है livre, livre meaning book. अब ये है तो फेमिनिन सिंगुलर, तो यहाँ तो माँ या फिर ता या सा आना चाहिए, राइट. बट मैं यहाँ क्या पुट करूंगी, मौ या तो या फिर सौ. वाई? बिकॉज ये एक एक्सेप्शन है, ये फेमिनिन सिंगुलर नहीं होता है, दिस इज मैस्कुलिन सिंगुलर. ये नाउन एक एक्सेप्शन है. समझ में आया? सो देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस लाइक दिस, लेकिन हमें रूल्स कौन से याद रखने हैं? हमें रूल्स कौन से याद रखने हैं? सेकेंड रूल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि जो फेमिनिन सिंगुलर नाउन्स हैं, जो वॉवल से स्टार्ट होते हैं, उनके साथ मौ, तो और सौ यूज करते हैं. ओके, that was it for this topic. I hope this is clear to you all. The only thing that you need to remember for this topic, the only drill that you need to do is table yaad rakh lo and you are sorted, children. If you know the table, if you know how to identify your nouns, gender and number, you will be sorted for this topic, and I hope this was clear to you. I have taught this in the most easiest manner possible. I hope this was clear to you. If you still have any doubts, please put them in the comment section below. And if you already knew it, I would like to know that too. Thanks for watching.